اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے بھائی حسیب الرحمان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پھول کھلتے ہیں مجھے صلی اللہ کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا ہے جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینے نہ جائیں کہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہی خاموش نگاہوں کی صدا سنتا ہے، تو ہی خاموش نگاہوں کی صدا سنتا ہے، چشم حیرت میں ہے انوار خدایا تیرے۔ اب میں میرے ساتھی افروز سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر بات کریں۔ ملت کے نوجوان بھائیوں اور میرے ساتھیوں اور جماعت کے ذمہ داران، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا عنوان ہے کہ نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو، وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس شخص نے ان نمازوں میں ان کے مقرر وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیے تو خدا پر اس کا مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھے، اگر کبھی جماعت نہ ملے فرض نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، البتہ سنتیں گھر میں بھی پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھے، وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اگر لوگوں کو نماز
बाजमात का अजर व सवाब मालूम हो जाए तो वो हजारों मजबूरियों के बावजूद भी नमाज के लिए दौड़ दौड़ कर आए। जमात की पहली सफ ऐसी जैसे फरिश्तों की सफ तन्हा नमाज पढ़ने से दो आदमियों की जमात बेहतर है। फिर जितने आदमी ज्यादा हो उतनी ही खुदा को ज्यादा महबूब होती है। मैं दूसरी बात भी याद दिलवाना चाहता हूँ, नमाज के बाहर भी नमाज का हक अदा कीजिए और पूरी जिंदगी को नमाज का आईना बनाइए। कुरान में है, नमाज बेहयाई और नाफरमानी से रुकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई असर अंजिस तमसील में इस तरह इसको पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूखी टहनी को जोर जोर से हिलाया। सूखी टहनी में लगे हुए पत्ते हलने से झड़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ने वालों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस सूखी टहनी के पत्ते झड़ गए हैं। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, वक़ीमुस्सलाता तरफ़ाइन नहारी वज़ुल्फ़म मिनल लैली इन्नल हसनता युज़हिबन सय्याति ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। और नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों पर, यानी फजर और मगरिब, और कुछ रात गई पर बिलाशुबा नेकियों बुराइयों को मिटा देती है। ये नसीहत है, ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए खुदा अमल की नेक तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इसके बाद मैं मेरे साथी अंकुश से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पर बात करें, जिनका उन्वान कुरान मजीद के हो। मिल्लत के नौजवान भाइयों और मेरे साथियों, जमात के जिम्मेदारान, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा उन्वान है कि कुरान मजीद के हुकूक। कुरान मजीद ने अपने तमाम हुकूक खुद ही ताकीद के साथ बयान करते हैं। यही अहम तरीन कुरान हुकूक का तज़किरा किया जाता है। खास बात यह है कि ये तमाम हुकूक हर मुसलमान पर आयद हुई होती है, यानी इनकी हैसियत फर्ज़ आइन की गई, फर्ज़ किफ़ाया की नहीं। सूरह निसा आयत नंबर 136, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही किताबिल्लज़ी नज़िला अलैका रसूली। ए लोगों जो ईमान लाए वो ईमान लाओ अल्लाह पर और इस रसूल पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है। कुरान सबसे ज़्यादा ईमान की दावत देती है। कुरान की हर बात पर ईमान लाना, दरअसल कुरान मजीद का मक़सद तरफ अल्लाह की हर बात पर ईमान लाना है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान की हर खबर पर पूरा यकीन करना ज़रूरी है। इस यकीन के बगैर कुरान से हिदायत हासिल नहीं हो सकेगी। यही हिदायत की पहली मंजिल पर पहुंचने वालों के ईमान में नसीब होती है, और इसके बाद हिदायत की तमाम मंजिलें ईमान वाले के नसीब में होती है। ईमान भी कुरान का ये एक तकाजा है कि किसकी मदद मुकाबले को अदा किया गया। ईमान भी कुरान का तकाजा ये भी है कि कुरान की हर बात के वजन को काम ना किया गया। कुरान की तज़ीम के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने कुरान को इंसानियत से आरास्ता किया, जो इसे बहुत अजीम करार देती है। जैसे कि हम अजीम मौजूद अला हकीम कुरान के तज़ीम इसी से इस्तिफ़ादे की ज़रूरी शर्त है। तज़ीम का तकाजा ये भी है कि भी दूसरी चीज़ को इसके मदद मुकाबिल को अदा किया गया, इसके बराबर या इसी से ज़्यादा मुताबिक को इसके फैसले से लिहाजा ज़्यादा दुरुस्त ना समझा गया। कुरान पढ़े तो अल्लाह की अज़मत का इदारिक हासिल होता है। खुदा से दुआ है कि हम सबको कुरान पढ़ने वालों में शामिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। सदा मेरे दिल से निकलती यही है जो इताअत में गुजरे वही ज़िंदगी। अब इसके बाद मैं मेरे भैया जाफ़र से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और नसीहत सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनों, ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनों,
کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کبیرون کو بھی نشہ، تھا حکومت کبیرون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم قحط پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم قحط پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت وبانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور قانون تھا، مالداری میں مشہور قانون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، اس ایسی طاقت وبانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، خدا عمل کی نیک توفیق دے۔ اس کے بعد میں بردر شعیب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی ٹاپک پر بات کرے۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today my topic is Iman. Let us take Iman first. It is the foundation of an Islamic life. Everyone knows that the information of Tawheed, unit of God, and Risalat, prophethood, is called Iman. If someone affirms this, then he becomes delighted to enter into the fold of Islam. Legally becomes qualified to be treated as a Muslim. In the same way, faith in the hereafter cannot be fulfilled on inner surface, though not given priority of precedence to Akhirah, and he is always ready to reject the dunya for the sake of Akhirah, and he is always a reminder, aware of accountability of the hereafter. Islam is actually another name for visible manifestation of Iman, the relationship between Iman and Islam. And tree, whatever is inside the seed in manifest in the from of the tree. In fact, by looking at the tree, one can make out what was present and what was missing in the seed. You cannot imagine a seed, you cannot without the seed, and also it is not possible that the planted in a fertile land does not even it a tree. The same applies to Iman and Islam. Wherever you have Iman, you will demonstration in the practical life. From the study of Quran, you will realize that the Iman, that dated with one's faith or created, is linked and related to the Islam.
of action and rated. Allah described how many times Iman with Amal Saleh, and He is promised that Allah was made retired to the people who are Mu'min with regard to their faith and Muslim. We God had obliged to the Munafiqin that had described the faith in their deed as a proof of their difficult Iman and has described the Islam of good deed and lighthouse practical real life. Thank you for giving this opportunity. जज़ाकल्लाहु खैर। सबक बंदगी का पढ़ाता है कुरान, सबक बंदगी का पढ़ाता है कुरान, हमें नेक इंसान बनाता है कुरान। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत देता हूँ मेरे भाई अब्दुल रहमान को, वो आए और नात पेश करें। ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही अशर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। ये आलीशान बंगले वह काम के नहीं है, मखमल में सोने वालों मट्टी में सो रहे हैं। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। 2 गज जमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो 2 दिन का ये सफर है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद ड्रामा होगा। अब इसके बाद मैं मेरे साथी फेरोज से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने उन्वान पर बात करें। मेरे साथियों और जमात के जिम्मेदारान, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है नशा। इन्नमा युरीदु शैतानु अय्युखिया बैनकुमुल अदावता वल बग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह माइदा आयत नंबर 91। तर्जुमा। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे और सवाब भी बाज आ जाओ। गुनाह के 2 किस्में हैं, गुनाह सगीरा छोटे छोटे गुनाह, गुनाह कबीरा बड़े बड़े गुनाह। गुनाह सगीरा नेकी और इबादतों की बरकत से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक कि इंसान सच्ची तौबा ना कर ले। सामए हाज़रीन और मेरे अजीज साथियों, अभी जो मैं आपके सामने बयान किया है गुनाह कबीरा यानी बड़े गुने, उसमें एक शराब पीना है। इंशाअल्लाह मैं आप सबके सामने मुख्तसर बात रखने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है, नशा करना बहुत बड़ी और बुरी चीज़ है। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, बल्कि सिगरेट पीना भी नशा है और गुटखा खाना हराम है और जर्दा खाना हराम है। इंसान को जो नशे में डालती है हर वो चीज़ हराम है। मुआनी सामे
हमारे मशरे में ये आम सी बात हो गई है और फैशन समझा जाता है। आज के नौजवान जो गुटखा खाकर या सिगरेट पीकर अपनी सेहत को खतरे में डालते हैं, मगर ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हम फलाह हीरो की नकल उठा रहे हैं। ये तमाम चीज इस्लामी तरीके से हराम है, इसका छोड़ना जरूरी है और बात से सवाब है, ये छोड़ना लाजमी है। गुनाह कबीरा फासिक व जहन्नमी है, इसका इनकार करने वाला काफिर है। मुआज़िज़ सामीन, अब मैं आपके सामने दुनियावी नुकसानात बयान करूंगा। गुनाह से आखिरत का नुकसान जहन्नम की सजाएं मुकर्रर है, मगर दुनिया में नुकसानात रोजी कम हो जाना, बलाओं का हुजूम होना, उम्र घट जाना, दिल में और बात मतबा तमाम बदन में अचानक कमजोरी पैदा होकर सेहत खराब हो जाना, इबादतों से महरूम हो जाना, अक्ल में फुजूल पैदा होना, लोगों के नजरों में कुव्वत हो जाना, हर वक्त दिल परेशान रहना, लाइलाज बीमार में मुख्तलिफ हो जाना, चेहरे से ईमान निकल जाना, शर्म व गैरत मर जाना, वगैरह वगैरह। अजीज भाइयों, हमारे ज़मीर को झांकने की जरूरत है, हमारे ईमान को उजागर करने की भी जरूरत है। हमारा ईमान और हमारी जिंदगी नेक रास्ते पर चले, यही इरादे पे मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। खुदा अमल की नेक तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे आ गया, पीछे पब्लिक को ले गया, पीछे पब्लिक को